सेवानी શરૂઆત થાય છે એવું લાગે છે. કામ વધી ગયું છે. હા હા પાંચ હાઈએસ્ટ છે આપણી પાસે ગુજરાતમાં. અમારે 100 પૈકીની 10 ત્યાં છે. એમ્બ્યુલન્સ બી 9 થઈ ગઈ. એમાં એક તો પેલી જે હમણાં 31 લાખની આપી. ના બીજો કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ નથી પણ એવું ખરું કે અત્યારે એક આખું નવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે અને 5-6 એકરમાં સેટઅપ કરવું છે બધું. કે અમારી પાસે ઓપ્શન્સ બહુ આવે છે એટલે એ બધા નંબર્સ હવે થાઉઝન્ડ્સ ઉપર થવાના છે. વેઇટિંગમાં 600 જણ વેઇટિંગ ચાલે છે. Good afternoon, all of you. In Narmada College of Management, we are starting this session in few minutes. અત્યારે 400 તો છે જ. સંભળે છે ને બહુ મોટા મોટા
ના 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 હું તો તમે અમારું બધું અલગ અલગ અત્યારે કામ ચાલે છે અને એક એક બિઝનેસ અત્યારે કરતા છે કે બચ્ચાઓને ટીવી આપે છે એટલે અત્યારે અત્યારે 5 વર્ષનું થઈ જવાનું છે એટલે ડાયરેક્ટ જોવા છે છોકરાઓને જોવાના છે ગુજરાતી અહીંયા ફરી વખત પછી તકલીફ તમે મૂવ કરો ને એટલે 20મી મિનિટે કંપની બંધ થાય તો તમે મૂવ કરો તો સિસ્ટમ બંધ થાય હું જે મારી ચેનલ પીઆઈ કરતી માણસને બહુ સારું તમારી સાથે Very good afternoon, one and all. So very happy to have you all here, Amit sir. And let's co-create something very different and new. Looking forward to all your suggestions. Thank you. And we'll start the program. One of the people have yet to join us, but we are sharing the Oh, yes. Pleasure meeting you, sir. Ji, ji. Good afternoon. Good afternoon to one and all present here. I, Ishrat Bhatti, and my co-host, Mahzabin Patel, extend a warm welcome to all of you at today's panel discussion on the theme Building a Sustainable Community, the Collective Role of NGOs and Corporates, organized by Narmada College of Management. I request all of you to keep your phone either in a switch off or silent mode. We would commence today's event with a short prayer. I would request the prayer team to come for the prayer. ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना सूर्य
Patel Hinal, Patel Jaimini, and Patel Bhumika for your inspiring prayers. Now we shall listen to the NCM song. Thank you.
multifaceted personality and great motivator. I request you, sir. Good afternoon, everyone. Yeah, I'm very happy to welcome you all participants from corporate world and the NGOs. So this is the event that we were waiting for, try to arrange and waiting for things. Like whatever vision that you have, many people have an idea, but sometimes we lack the personal commitment or the organization commitment to fulfill that vision. Okay, so I think that we must be committed to the vision that we have, and then only we can make a difference to the society. So that is, so today I am very happy that we all are here. And other thing that I have seen that if you look at the Bharuch and Ankleshwar area, there are so many industries. Okay, and maybe if you collectively, if you look at the CSR fund, there may be like 200 to 400 crore rupees every year we are spending on such activities. But as the output you see, okay, there are a lot of duplications in the work, or because everybody is working in a scattered manner. So the effort that we thought that if we can combine the synergy and the resources and the energy of everybody, and we have a focused approach to the development, and if we collectively, if we decide that what are the focus areas that we need, how we can concentrate on that aspect collectively, then I think we can make a difference in a better manner. So from that aspect, I think today's panel discussion and subsequently, the roadmap or how we can go further. Okay, subsequently we can involve the government, RTO or DDO or other people also to align that task. So I'm very happy that, and other thing that I wanted to tell that today in the panel discussion we are going to discuss about the community sustainability. Okay, like when we talk about the sustainability, there are three aspects: the social aspect, economical aspect, and the environment aspect. Okay, so like all our efforts should be concentrated on that aspect. That we always do that, but if we collectively try to connect all the three aspects in whatever activity that we try to do, okay, and many of the time, like I have seen that in many of the CSR activities, we try to give the support to the communities in terms of the various facilities and other things. But according to us, if we try to make the people empower, okay, like economically, because village people are not education point of view, or they are not able to get the employment of their own, and if we can support though like skill development and other activities so that they are able to sustain in their own manner, okay, economically. So if you can empower the people so that they can earn their livelihood by themselves. So in those kind of activities, if we can concentrate, so all the three aspects, then the societal social fabric can be maintained in our rural areas, and we try to develop in that manner. I think we can do much better. And of course, environment is a big field that we talk about the pollution and sustainability and other things. So there's a vast field that we can do that. So I hope that today's discussion will be very useful, and subsequently we will be able to have some roadmap to follow. So again, I welcome you all, and thank you very much for coming, taking your time out. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Before we start the panel discussion, I would like to Dr. Trupti S. Arora to give brief introduction of this event. नर्मदा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के स्टाफ एवं स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रही है। सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड एट एनी ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, आई मे मिक्स अप अ बिट। सो एक अच्छा इवेंट जो हमारे जो MBA के स्टूडेंट्स हैं उनके थर्ड सेमेस्टर में दे हैव टू डू अ प्रोजेक्ट on which is titled as multidisciplinary action project, जिस माध्यम से उनको बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा और क्या क्या मैनेजमेंट आना चाहिए ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बन पाए, अच्छा व्यक्ति बन पाए, उसके लिए एक छोटा सा ये ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पे उनको समाज उपयोगी ऐसे कार्य करने होते हैं और साथ साथ
अपनी भी स्किल बिल्डिंग होती है, अपनी भी एक पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है, वैल्यूज सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, समाज के प्रति जो विवेक होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स वो अपने में ग्रहण करते हैं। तो एक अच्छे उद्देश्य से ये MBA प्रोग्राम का हिस्सा है। उसी एरिया में हमारे 14 ग्रुप्स हैं। 14 ग्रुप्स ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो सारे समाज उपयोगी हैं। आपको फिर मैं आपके मेल आईडीज हैं, उसके ऊपर मैं एक मेल ज़रूर छोड़ूंगी आज नहीं तो कल, जस्ट अपना परिचय कराने के लिए कि और क्या क्या प्रोजेक्ट्स बच्चे कर सकते हैं और करते हैं। आज की अगर बात करें तो हमारे 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो लोकल NGOs के साथ काम करके ये एक मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप है जो इंटरनेशनल NGOs को साथ लेके एक मिशन अचीव करना चाहते हैं। दोनों ग्रुप्स को हमने इकट्ठा किया क्योंकि हम बात ही ऐसी करते हैं कि समाज का एक एक संस्था एक साथ मिलके जो काम करे उसका जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा वो किसी एक संस्था से नहीं हो पाएगा। यही बात आज भी हम करने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो पैनल डिस्कशन के रूप में है। उसका थीम आपके सामने है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल कम्युनिटी, द कलेक्टिव रोल ऑफ NGOs एंड कॉर्पोरेट्स। इसमें 2 पैनल डिस्कशंस होंगे। पहला पैनल डिस्कशन ये बात करेगा कि आज हम जो कर रहे हैं उसको और मैक्सिमाइज कैसे करें और क्या स्ट्रैटेजीज होने से हम जो आज परिणाम दे रहे हैं उस परिणाम को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो ये एक सोच का मुद्दा है। हर एक व्यक्ति सोचे, हर एक संस्था सोचे, और पैनल डिस्कशन से माध्यम से हम और सारे मुद्दे डेस्क पे ला पाएंगे जो हमें अपने शायद एक्टिविटीज़ के भाग रूप में इसका इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये चर्चाएं होंगी कि हम जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है या NGO को रिप्रेजेंट कर रहा है या कंपनी CSR को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे उम्दा कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये तो हकीकत है और है। लेकिन क्या ये इतना काफ़ी है, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। तो पहला डिस्कशन इसमें डिस्कशन होगा कि हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करें। दूसरा डिस्कशन ये होगा कि जब हमने एक साथ मिलके हम कटिबद्ध हैं कि हम ये करेंगे मैक्सिमाइज, सो हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, what is the futuristic agenda, what is the action plan that we will take to take this further। एक कमिटमेंट के साथ हम यहाँ से विदा होंगे और ये सिर्फ एक एक्टिविटी न बन के एक मिशन बन के रह जाए, ऐसी हमारी परिकल्पना सबकी होनी चाहिए। और इसके लिए हमें और भी साथ मिलना पड़ेगा, अलग डिस्कशंस, अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो हम मिलते रहेंगे, ये वादा रहा आपसे और हमसे दोनों की तरफ से। छोटा सा ब्रीफ दे दूं। नमस्कार विपिन कुमार जी, हाउ आर यू? प्लेजर हैविंग यू विद अस। बैठिए सर प्लीज, ऑन द फ्रंट डेस्क। सितंबर 2015 में ऑलमोस्ट 193 देशों ने UN में इकट्ठा होके एक वैश्विक स्तर पे एक टिकाऊ समुदाय की व्यवस्था और विकास में कैसे आगे काम करे, एक दूरदर्शिता दिखाई थी और एक व्यापक व्यू रचना कि हम इसको मिलके, सारे परिबलों को मिलके कैसे हमें इसको आगे ले जाना है, उसके प्रति सारे देशों ने एक कटिबद्धता स्थापित की थी। ये कटिबद्धता देशों की है तो मतलब हर इंडिविजुअल की है, हर सिटीजन की है। और इस टिकाऊ विकास के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए 17 मुद्दे जो आप सबको मालूम है, मैं कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट करना मेरा धर्म बनता है। सो 17 मुद्दे थे: नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, and partnerships to achieve this goal. तो ये सारे मुद्दे पे हम काम कर ही रहे हैं। सिर्फ पार्टनरशिप पे हम थोड़ी सी आज चर्चा और विकसित करना चाहते हैं
ताकि we can maximize our efforts. हर मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम एक होलिस्टिक सोसाइटल ग्रोथ को देखते हैं तो सारे मुद्दों को इंटरट्वाइन करने की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए जितने लोग इसमें योगदान दें उतना कम है, जबकि especially when our country is so large and so diverse, it becomes all the more necessary. और तभी शायद अपनी ये जो समाज है वो गतिशील बनेगी. गतिशील is what? That we are dynamic, we are innovative, we are growing consistently. And growing in what dimensions? In all the 17 dimensions laid down by the UN in the SDG goals. और इसके लिए शायद हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हर एक के पास, चाहे वो NGO हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे सर ने बताया कि इट इज़ आवर रोल ऑल्सो एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज हो, हर एक के पास एक अलग कौशल्य है, एक अलग निपुणता है, एक अलग ज्ञान का भंडोल है, एक अलग स्किल लेवल्स हैं. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन कैसे करेंगे वो आप ही हमें बता पाएंगे क्या, क्योंकि आप तो इस फील्ड में सालों से हैं. लेकिन ये कलेक्टिव एक्शन, स्किल की लेन देन, ज्ञान की लेन देन, कुशलता की लेन देन, ताकि हम सब एम्पावर हो जाए सारे विश्व में अपने देश के, अपने समाज को एक डेवलप्ड नेशन में बदलने के लिए. तो वी विल हैव टू वर्क ऑन दीज इश्यूज. ये जो 17 मुद्दे मैंने बताए, शायद कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां हम आज काम नहीं कर रहे हैं. हम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं. लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसके सर पे छत नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो भूखे सो जा रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसको पानी के लिए मीलों दूर जाके एक स्वच्छ पानी उपलब्ध कर पाते हैं. बहुत सारे इश्यूज हैं समाज में, और शायद अगर हम इसकी चर्चा करें तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने आंखों में पानी आ जाता है कि ऐसा कैसा जीवन मानव को. तो इस मानव कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें चिंतित होना बहुत ज़रूरी है. तो एक तरफ जब हम ऐसे मुद्दे जो सालों से चलते आ रहे हैं अपने देश में, पॉवर्टी, हाउसिंग, एजुकेशन, जेंडर इक्विटी, ये तो चलते ही आ रहे हैं. इसको तो हम अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से. और दूसरी तरफ कौन से इमर्जिंग इश्यूज हैं? क्लीन एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नए इश्यूज, एनवायरमेंट पोल्यूशन, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी, ये नए इश्यूज आ रहे हैं. अभी नए इश्यूज, अपने पुराने इश्यूज को तो हम टैकल नहीं कर पाए. नए इश्यूज को टैकल करना जरूरी है दुनिया को बचाने के लिए. समझो कि अपना काम कितना विशाल है. तो इस काम में हम एक साथ क्यों जुट रहे हैं? क्योंकि दोनों की एक पॉजिटिव है, दोनों की एक स्ट्रेंथ है. एनजीओ की स्ट्रेंथ क्या है? एनजीओ की ये स्ट्रेंथ है कि रिमोटेस्ट वर्क प्लेस पे, रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ दी सिटीज एंड टाउन्स एंड विलेजेस, वहाँ पहुँच पाते हैं जहाँ शायद कंपनीज या कॉलेजेस या इंडिविजुअल्स नहीं पहुँच पाते, वहाँ एनजीओ पहुँच पाते. तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि आप लोगों की नब्ज को जानते हैं, लोगों की दुविधाओं को, परेशानियों को समझते हैं. ये समझ जो आप में है वो आपकी स्ट्रेंथ है. वो सेंसिटिविटीज जो आप में है वो आपकी स्ट्रेंथ है. और आप निरंतर, आप कभी हताश नहीं हुए कि भाई मैंने इतना कुछ किया, देखो फिर भी ये प्रॉब्लम है. नहीं, आपने उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते गए. एक निरंतर कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स. दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द एनजीओज. और इस स्ट्रेंथ की वजह से कॉर्पोरेट्स को क्या फायदा है कि वो रिमोटेस्ट प्लेस का फीडबैक हम तक ले आते हैं. कौन ले आते हैं? एनजीओज ले आते हैं, जो हम कभी नहीं जान पाएंगे. तो ये फीडबैक जो वो ले आते हैं उसके ऊपर हमें बड़ा चिंतन करना है. हमें सोचना है कि ये हकीकत जो हमें हमारे सामने लेके आ रहे हैं उसका हम क्या करें. दूसरा ये है कि एनजीओज को भी साथ साथ शायद ये चिंता की बात है कि हम जो करते आ रहे हैं उसी में हम करते जा रहे हैं और हम बड़ा सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं. लेना भी चाहिए, प्राइड लेना भी चाहिए, लेकिन उतना काफी नहीं है. शायद हमें जो नए इश्यूज समाज में आ रहे हैं उसके प्रति अपने स्किल
स्किल बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है. हमें भी नई एक्सपर्टीज जोड़नी पड़ेगी अपनी क्वालिटीज़ में. तो ये NGOs के लिए भी एक चैलेंज तो नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है. हम जाने कि हमें और क्या स्किल्स अपने आप में डेवलप करनी है. दूसरी तरफ हम कॉर्पोरेट्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि वेल्थ इज नॉट न्यू, नीदर इज चैरिटी. Wealth is not new, neither is charity, but the idea of using private wealth, the idea of using private wealth imaginatively, innovatively, constructively, and systematically to attack the fundamental problems of mankind is essentially new. The wordings are very important: imaginatively, innovatively, constructively, systematically, and I will add one more word: collaboratively. And that is what is new, and let us see how we can address all those issues. And what is good about the corporates is कि आपके पास भर भर के financial resources हैं, भर भर के, कुटी कुटी में थे. क्या करेंगे इतना जमा करके? सोच बदलने की जरूरत है. It's like, when one member in your family is doing well off, it becomes a moral responsibility, not a social responsibility, a moral responsibility to support the other members of the family. So Vasudhaiva Kutumbakam, we are a family and we need to support every single person in the family. And that is very, very important. So ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓએ આ દિશામાં સક્રિય બનવું જ રહ્યું, ખંતથી કામ કરવું જ રહ્યું, કટિબદ્ધતા દાખવવી જ રહી, અને તો જ NGOને પણ વધુ સ્કિલ્સ મળશે અને વધુ આનંદ મળશે, વધુ પ્રેરણા મળશે કે રિસોર્સિસની અમારે ક્યારેય ચિંતા કરવાની નથી. રિસોર્સિસ આવતા રહેશે, અમારે તો ફીડબેક લેવાનું છે, CSRમાં લઈ જવાનું છે, CSR અમને સપોર્ટ કરશે, અમે ફરી સમાજ સુધી આ વાતોને લઈ જઈશું અને સમાજને એક સમતલ રૂપે બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ. And we're going to discuss in the panel discussions how we can bring about balanced growth. Growth हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, pockets में हो रहा है. That is a concern. So we don't want to have pockets of growth. We want consistent and balanced growth across. And India, again, I repeat, being a very wide country, it is a very big challenge. But then it is not impossible. It is possible. And therefore, what all the more becomes important is synergy. We will have to bring synergy in our thoughts, our ambitions, our aims, our objectives, our goals, our vision, our mission. Synergy. कभी हमने शायद ही देखा हो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे NGOs और कॉर्पोरेट CSR साथ बैठ के चर्चा करें कि हम कलेक्टिवली क्या करें इस समाज के लिए. सब अपने अपने विजन स्टेटमेंट्स को लेके चल रहे, काम अच्छा कर रहे. सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, नो डाउट्स अबाउट इट. बट हैव यू एवर गॉट अलोंग विथ ईच अदर एंड सेड कि ભાઈ તમારા મુદ્દાઓ શું છે, મારા મુદ્દાઓ આવો છે, કે આપણે એમાં ફેરબદલ કરીએ, થોડા ફ્લેક્સિબલ થઈએ અને ફ્લેક્સિબલ થઈને કોમન પ્રાયોરિટી સેટ કરીએ અને કોમન પ્રાયોરિટી સેટ કરીને સ્કિલ બિલ્ડિંગ કરીએ, બીજા લોકોમાં પણ આ સ્કિલ બિલ્ડિંગ કરીએ કે જેથી રિસોર્સિસ સમતલ રીતે વેચાય અને સમાજને સમતલ બેલેન્સ રીતે પહોંચે. This is a must for all of us to do, and therefore I say this is a beginning and this will continue for long years till it becomes our personality, till it becomes our habit, and till it becomes a day-to-day affair for us that we collectively design priorities for the country and work towards them. અને ત્યારે જ કદાચ સમાજને આપણા પર વિશ્વાસ આવશે. ક્યારેક આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ હા બધું કામ તો બહુ થાય છે પણ હવે ઠીક છે કરીને જતા રહે છે. તો આવું સાંભળવું કોને ગમે આટલું બધું કર્યા પછી? It's like a mother cooks delicious food, બહુ પ્રેમથી કે બધા ઘરે આવશે ને હું બધાને જમાડીશ અને કોઈક એક છોકરું કહી દે કે મમ્મી આ શાક તો મને ભાવતું જ નહોતી, તે કેમ બનાવ્યું? Imagine what happens to the mother. है ना? तो एक दिल से जो हमसे आशा करता है समाज, उसकी आशाओं पे हम पानी नहीं फेर सकते, उसका अधिकार हमें नहीं है.
तो ये विश्वास उनमें जगाना बहुत ज़रूरी है। वो विश्वास तभी जगेगा जब हम एकजुट होके कंबाइंड प्रायोरिटीज़, कलेक्टिव प्रायोरिटीज़ सेट करके एक बैलेंस्ड ग्रोथ समाज को देंगे और पुराने इश्यूज़ को भी लेके और नए जो इमर्जिंग इश्यूज़ है उनको भी एड्रेस करके। इसके लिए स्किल बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस इज इम्पॉर्टेंट, अग्रीड, but that is only one step in the direction. Comply, why comply? एक जगह पढ़ रही थी कि ये compliance लाना क्यों पड़ा? जब voluntary होता तो compliance लाना ही नहीं पड़ता, है ना? तो ये comply ठीक है, वो आपको करवाता है मजबूर, कुछ नहीं करोगे इससे अच्छा इतना तो करो, लेकिन इतना काफी नहीं है अपने देश के लिए, बहुत कुछ करना है. So with having said this, one very important thing I would like to say here is that in a country like ours, which has diverse issues and emerging issues of prominence, it's going to take a long time. ये बदलाव ऐसे नहीं होगा, बहुत समय लगेगा. हमारे जनरेशन के बाद मेरे, आप तो सब यंग हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ. हमारे जनरेशन के बाद आपका जनरेशन, आपके बाद और आने वाले जनरेशन, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस. तो हमें धीरज रखनी पड़ेगी, हमें धीरज रखनी पड़ेगी और उसी पैशन से, उसी मिशन से, उसी विजन से आगे चलता रहना पड़ेगा. ये धीरज होगी तो हम ज़रूर कर पाएंगे. और लास्ट मेरी बात ये है कि लेट्स नेटवर्क, लेट्स इनोवेट and let's establish measurable, sustainable community development goals so that we take India in the year 2020, somebody can correct me if I'm wrong on my numbers, we were 144th in the rank of happiness index. 2021 from 144 we came to 139, and in 2022 we came from 139 to 136. How did it happen? All because of your efforts. So salute to each one of you once again, but 136 is not acceptable. Not acceptable at all. So let's commit ourselves, Katibadh Bane, is mission ke liye. With these words, thank you so much, and I hope that we are going to deliberately do something great about these thoughts and not let it remain as thoughts and minutes of the meeting. We must work on that. And having said that, I think over to the students. Thank you. Good afternoon, Hemraj from Grasim Industries Limited. Good afternoon, everyone. I'm Ansar Sheikh from CSR Department of PEL Infrastructure Limited, Ankleshwar. We are working on multiple aspects: preventive healthcare education, women empowerment, environment sustainability, and infrastructure development in the surrounding areas. Thank you. Good afternoon. My name is Rajnikant Tandel. I am coming from DCM Siram. I am a part of CSR. Good afternoon, everyone. This is Saurabh Kayas here from professionally into administration with Aarti Industries Jagadia, and socially associated with Rotary as well as PDMA, and passionately into CSR. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Saurabh Chakravarti from Jubilant Infrastructure Limited and part of CSR department. And we are working on 4 pillars, that is health, education, livelihood, and rural development. Thank you. Good afternoon. I am J.S. Vora from Jain Social Group Welfare Trust. We are doing various community projects here on a daily basis. We have adopted three schools in Bharuch, and on a daily basis our volunteers go and impart teaching to the needy students. We are running a women empowerment project at Kasik area, and in the year around 350 to 400 women from very poor families. We teach them sewing, fashion designing, computers, tally. Some people which are basically old dowding people, we take care of geriatric care, and we teach and make them as a mid nurse and all that. We're also doing Jeevdaya project in the Adivasi areas.
Every fortnight, our team, along with the doctors, they go and treat around 350 to 400 cattle. We give them vaccinations like recently, lumpy virus and all that. We also give them vaccinations for vitamins and see that the milk production increases. Apart from that, we are also doing one project in association with other NGOs. That is a Chakshudam, eye donation. By this time, around more than 1,000 people we have made them to see by collecting eyes from the people. So all these projects, plus occasionally we do blood donation. In this college on 31st, we are planning blood donation camp along with other NGOs and all that. So on a daily basis, we have around a team of 100 volunteers. On everyday basis, they are working somewhere or other. Finance is not that big issue because we have been getting donations from all over the world. But still, there's a big scope, and I hope this event will help us to find out the areas of improvement. Thank you. Good afternoon all. I am Harshna Modi. I am professional HR and I am working with JCI, Junior Chairman International. And this is the NGO which is non-profitable, and this has been started before 107 years ago. In across the world, 124 countries are belonging from the JCI. And the beauty of this NGO is very nice that if I am a member of here in Bharuch, that if I just move anywhere in the country, I can be a member and part of the same NGO anywhere into the world. And the part of the organization is the having the lot of projects, like currently we are today only we are having one project into SOU, that is some of the students from the Kalra school, they have been reached as SOU with JCI, and blood donation Pasti with Pagarkha, other many projects we are doing for the community into the Bharuch and across anywhere into the world. Thank you very much. Good afternoon to everyone. My name is Mistry Soham, and basically I am from Pathshala Bharuch, and we are running an NPO. So basically what we are doing, we are finding the slums area in the Bharuch, and over there we study the small children whose parents are not financially capable to send their children to the schools. So we capable to give studies of the basics, and then we put them in the schools. And we had done many of our students are going to school, and our whole management is taking all of their financial fees and all that by ourselves. And basically in Gujarat we are in four main cities: Bharuch, Rajkot, Ahmedabad and Vadodara. And this is originally fined by the students of the GEC Bharuch, and currently in Bharuch also the whole management team is of the GEC Bharuch students only. Thank you. Hello, myself Aditya Sharma, and I am from Sarthak Foundation Charitable Trust. And we are majorly working on animals treatment and their first aid facilities. So anywhere we see if anyone call us that we have an injured animal in any area, we are active in Bharuch and Ankleshwar region. So we have our own ambulance and first aid facility vehicle. So we treat all animals in the different ways where the challenges come. And last year we have also awarded by the government of Gujarat in the Jeev Daya mission for putting the camp in Bharuch in two areas for treating the injured birds while in Makar Sankranti period. So our major work is for the animals who has not a speech, they are ill, they have injured, but they can't speak. So our thought is to provide them that facility which we humans have the speech, but the animals don't have. So they can't say that we are ill or we have some problem. So we are working in that way. Thank you. I think front में madam please. Mic. Anybody left out at the back? Otherwise the mic can come to the front. I am Jignesha from Seva Rural Jagadia. બીજું બધું આપણે પેનલમાં હા આવીશું. પેનલમાં કબૂલ ભાઈ ડોક્ટર સાહેબ કહેશે. પણ છે. Thank you. Myself Ambika Muria, Innerville Club of Bharuch. Welcome. Innerville Club of Bharuch has come before. Madam, you should be here. Ambika madam. Madam, please come. You should be here. आओ please.
way. You can sit near Dhruv Raja. Yeah. Hi. આપનો પરિચય madam. Hi. I am from Innerville Club of Bharuch. Meena Shah, past president of the club. Our main motto of the club is fellowship, friendship, and service. We are doing some social projects for women and every all poor social poor locality and other. We will then discuss the topic. No problem. Okay. Yeah, sure. Thank you so much. So thank you once again for introducing everybody. We can start with Rajesh Bhai on the topic. How do you propose, having listened to everybody, what their activities are, having understood what our national and global objectives are, તો એ દિશામાં તમારા હિસાબે જે કામ થઈ રહ્યું છે એમાં હજુ વૃદ્ધિ અને મેક્સિમાઇઝ કેવી રીતે થઈ શકે એ માટે તમારા વિચારો એનજીઓઝને લઈને સંસ્થાઓ ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓને લઈને ભેગા મળીને કઈ રીતે શિક્ષણ સંસ્થાઓને લઈને વોટ એવર આર યોર આઈડિયાઝ ઓન હાઉ ટુ મેક્સિમાઇઝ. Thank you, ma'am. Once again, good evening, everyone. So, हम शायद तीनों भाषा में जाएंगे, तो मैं दो तीन लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा, गुजराती, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. तो बेसिकली हम थोड़ा मैं अगर एसआरएफ का इंट्रोडक्शन दे दूँ तो हम हमारी जो प्लांट है वो दहेज में है. अक्रॉस द कंट्री हमारे 19 लोकेशन है, बट दहेज इज़ द बिगेस्ट वन. और हमारा जो प्रोडक्शन है मेनली फ्लोरल केमिकल्स और हैवी केमिकल्स एंड स्पेशल केमिकल्स. CSR की बात करें तो पहले हम शुरू में अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 2015 somewhere around we started a rural education program 15 स्कूलों के साथ. We adopted 15 schools of Wagra block, mainly primary schools जो 1 to 8 है वो. And then we started our rural education program. जो गवर्नमेंट स्कूल से उनको मॉडल स्कूल में ट्रांसफॉर्म करना. हमारा SRF का दूसरा भी ये है कि we are having our own Sri Ram Lady College in Delhi और Sri Ram schools in Delhi जो काफ़ी एजुकेशन में एडवांस है. So having that vision and mission हम basically एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. हमारा कोर एरियाज भी एजुकेशन है. सो एजुकेशन में हमने 15 स्कूलों में जब वागरा में काम किया, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला कि लेट अस गो समवेयर, लेट अस एक्सपैंड. क्योंकि जब हम काम कर रहे थे तब हमें पता चला कि काफ़ी सारा डुप्लीकेशन हो रहा है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारा डुप्लीकेशन है. और ऐसे भी हो रहा था जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो कोई और भी दे रहा है. सो ऐसा लग रहा था कि स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा मिल भी रहा है और इवन हम वो चीज़ को नहीं जानते थे कि उनको कैसे यूटिलाइज करवाना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमने भी हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में एक स्मार्ट क्लास डेवलप किया. एट द सेम टाइम काफ़ी सारी इंडस्ट्री आई और सेटअप किया. बट व्हेन वी गो एंड आस्क देम वेदर दे नो हाउ टू यूज इट, तो टीचर्स बोलते हैं हमें पता नहीं है कैसे यूज़ करना है. बच्चे बोलते हैं हमें भी पता नहीं है कैसे यूज़ करना है. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो इतना महंगा टीवी, ऑलमोस्ट 50-60-70,000 का टीवी ऐसे ही पड़ा रहता है. सो व्हाट वी हम क्या करते हैं जब भी देते हैं, हमारा जो एक ये है कि नाउ हमारे पास 36 गवर्नमेंट स्कूल्स है. तो 36 स्कूल्स के सारे टीचर्स को हम क्या करते हैं, हेड मास्टर्स को वंस इन अ मंथ हम बुलाते हैं. एंड देन वी आर हैविंग अ फुल डे वर्कशॉप मीटिंग एंड उनके साथ उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है और हम क्या कर सकते हैं. सो जो गैप है उसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, गैप कहाँ पे है वो फिट. एट द सेम टाइम स्कूल पे, गवर्नमेंट स्कूल पे एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होता है, उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं. हम वहाँ तक ही सीमित नहीं रहते, हम पेरेंट्स को भी बुलाते हैं एंड पंचायत को भी बुलाते हैं और सारे लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि लेटेस्ट सोचते हैं कि हमारे स्कूल को हम कैसे देखना चाहते हैं. From the headmaster point of view, from the teachers point of view, from the panchayat point of view, from the villagers point of view, and from the SMC point of view.
तो एक होलिस्टिक अप्रोच हमें मिलता है, एक होलिस्टिक विजन मिलता है। जब एक मॉडल स्कूल बनाना होता है तो हम ये सोचते हैं कि चलो हमें मन में आया, आज बजट अप्रूव कर लिया और कर देना है। नो, उसके लिए एक थोड़ा प्रोसेस होता है, हमें थोड़ा पायलट स्टडी करना पड़ता है। हेडमास्टर की लीडरशिप कैसी है वो भी हमें देखनी पड़ती है, पंचायत की लीडरशिप कैसी है वो भी हमें देखनी पड़ती है। हाउ द कम्युनिटी एंड SMC आर अवेयर, वो लोग कैसे अवेयर है वो भी हमें देखना पड़ता है। आफ्टर ऑल हम फिर सोचते हैं कि ओके ये करने जैसा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ हम हमारा प्रोग्राम ये करते हैं। तो मैं थोड़ा दहेज की बात करूँ तो दहेज में हमें काफ़ी सारा डुप्लीकेशन लगा, और जो हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया उसमें भी हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि हमें प्योर पिक्चर नहीं मिल रहा था। तो फॉर दिस रीज़न हम थोड़े आगे गए। हमने सोचा, हमने पूरे ब्लॉक का जो 9 ब्लॉक से भरूच डिस्ट्रिक्ट के, उसमें सारा स्टडी किया और फिर हमें पता चला कि नेत्रंग इज अ ब्लॉक कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही, अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। तो हमने ये सोचा कि एक सैंपल स्टडी के लिए लेट अस टेक एन फुल्ली ट्राइबल एरिया कि वहाँ पे क्या ये आ रहा है। देन इन 2019 समवेयर हम नेत्रंग में गए, वहाँ की हमने 15 स्कूल अडॉप्ट की, और फिर रिसेंटली हमने जो इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया, देयर वाज अ बहुत सारे ये है कि दहेज एंड नेत्रंग में नेत्रंग का रिजल्ट यह है कि ऑलमोस्ट 100% बच्चे वहाँ के एक्टिव है, लीडरशिप काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है। एट द सेम टाइम मैं दहेज को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट एक सोच हमने ये भी देखी है कि ये तो इंडस्ट्री है, ये तो कंपनी है, आएगी और देके जाएगी, हमें क्या है। सो वो भी हमें सीखने को मिला है थ्रू आउट आवर जर्नी। जब ये सारी चीज़ें होती थी तो काफ़ी सारी चैलेंजेस भी आए कि लोग आके बोलने भी लगे कि आपकी कंपनी यहाँ है, आप काम यहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे कैसे चले गए। बट हमें भी देखना था कि एग्जैक्टली कि इतना सारा जो हम बजट यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, उसका जो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो कैसे मिले। तो इस हिसाब से फिर हम आगे बढ़े। आज हमारे पास 15 स्कूल से होके हमारे पास 45 स्कूल से भरूच के, एंड वहाँ पे हम 4 कोर एरियाज में काम करते हैं। एक फिजिकल डेवलपमेंट में हम पूरे स्कूल का रिनोवेशन करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, फिर जो प्ले जोन नहीं है तो बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा, बच्चे खेलेंगे, तो उसके लिए एक प्ले जोन डेवलप करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन है, सैनिटेशन से, स्मार्ट क्लासरूम से, ये सारी चीज़ें, इवन बाला पेंटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल। इसके बाद हम ये करते हैं लीडरशिप में भी हम हर टीचर्स के साथ, हर बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं एवरी मंथ। हमारे हर स्कूल में जहाँ पे हमारा इंटरवेंशन है, हर स्कूल में बच्चे एक एक कमिटी रहता है, और वो कमिटी में हेड बॉय हेड गर्ल रहते हैं, एंड दे हैव द हमने इतना ये वो लोगों को ये किया है कि एम्पावर किया है बच्चों को कि वो लोग अपने जो रिसोर्सेज एस्टैब्लिश किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और कैसे यूटिलाइज करते हैं सारी चीज़ों का, चाहे वो लाइब्रेरी हो, डिजिटल क्लासरूम हो, साइंस लैब हो, उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो लोग डेली ट्रैक करते हैं। तीसरा जो है हमारा एकेडमिक इंटरवेंशन। अगर हम इतना सारा खर्चा कर रहे हैं तो हमें लर्निंग लेवल जो आउटकम मिलना चाहिए वो भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग, सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स करते रहते हैं। एंड लास्ट है हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम चौक टू टॉक से जो एक ये था अप्रोच था, उससे हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं कि स्मार्ट क्लास कैसे डेवलप किया जाए और बच्चों के हाथ में टैबलेट कैसे हो, वो कैसे यूटिलाइज करें। तो जब ये सारी चीज़ें हमने कोविड ने सिखा दी है कि जब कोविड आया तब हम अपने आप कैसे ऑनलाइन में जुड़ गए, हमें ऑनलाइन की सारी सिस्टमें पता चल गई। एट द सेम टाइम जब हमें ये काफ़ी सारा चैलेंज लगा कि 1 साल तक बच्चे बस बैठे कैसे रहेंगे, तो हमने सारे टीचर्स को बुलाया, ट्रेनिंग किया, और सबको एंड्रॉयड फ़ोन, कैमरा, कॉलर माइक, ट्राईपोड और सारी चीज़ें दिए, और हमने जितने भी कम्युनिकेशंस के एक्सपर्ट्स थे उनको बुला के ट्रेनिंग दिया कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है, कैसे व्हाट्सएप में देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रेन किया। एट द सेम टाइम बच्चों को भी सेम चीज़ हमने सिखाई। आज हमारे बच्चे अच्छे तरह वीडियो बनाते हैं, अच्छी तरह सारे डिजिटल इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये 4 हमारे कोर एरियाज है।
फिर हमें आगे जाते सीखने मिला कि जो बच्चे आते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो बहुत वीक होते हैं, तो हमें ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं और गैप रह गई है। तो इस साल हम भरूच की 86 आंगनवाड़ी अडॉप्ट की है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। और आपको शायद सबको पता होगा कि FLN जो फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी का जो निपुण भारत का एक कॉन्सेप्ट आया है उसको भी हमें फुलफिल करना है। तो इस साल हम 86 आंगनवाड़ी पे काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारा 2 बसेस है, एक HP के साथ HP वाव प्रोग्राम, वर्ल्ड ऑन व्हील करके एक प्रोग्राम है जो रिमोट एरियाज में जाके जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी का, डिजिटल लिटरेसी का क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं, वहाँ पे हमारी बस जाती है। इट कंसिस्ट अबाउट 25 कंप्यूटर्स और वो सारी बस विलेज में जाके यूथ को फुल डे ट्रेनिंग देती है। फुल डे में उनको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंड कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा दोनों साइड स्क्रीन है, तो शाम को हम गांव में जाके स्क्रीनिंग करते हैं। एंड उसके बाद किसी को भी चाहे राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी अपना फॉर्म फिलअप करना है तो फ्रीली आके वो बस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और पूरा कम्युनिटी के लिए फ्रीली पूरा वाईफाई है वो पर्टिकुलर विलेज में। एंड तीसरा है, लास्ट है हमारा डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमारा जो फैक्ट्री है वहाँ पे हम 2-3 विलेजेस से वहाँ पे जो भी नीड्स है गांव की वो हम फुलफिल करते हैं। एंड नाउ अभी रिसेंटली हम आफ्टर द इलेक्शन, सून आफ्टर इलेक्शन वी आर गोइंग टू लॉन्च प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ मोबाइल वन फॉर नेत्रंग एंड दहेज फोर। तो ये हमारा अभी का एक्टिविटीज है। थैंक यू राजेश जी। many congratulations to your team and SRS। 4 मुद्दे जो मेरे ध्यान में और पसंदीदा मुद्दे जो हैं, वो पहली बात ये है कि आपने इम्पैक्ट को जोर दिया, ना कि आपने रीजन की डेवलपमेंट को जोर दिया। आपने ये समझा कि यहाँ पे एक इंडाइजेशन, मतलब बहुत कुछ आ रहा है जहाँ इतनी की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया कि look at the impact, not just the geographical location. Second is you worked on not only just giving physical infrastructure but on the skills development, which is very much important for using the physical infrastructure. तीसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपको लोगों का विश्वास जीतने की इच्छा हुई। ऐसा नहीं कि हमारा तो काम है हम करते जाएंगे, लोगों को जो कहना है कहें, नहीं ये चलेगा नहीं। वी हैव टू अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ द बेनिफिशियरीज। वो आपने महत्व स्थान दिया अपने कार्यों में। और चौथा ये मैंने पाया कि आप खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के ऑब्जर्वेशन से, कुछ खुद के कार्य से सीखते रहें और उससे कुछ नई दिशाएं अपने लिए बनाते रहें। ये बहुत ही अच्छी बातें हमने आज जानी। मेरा प्रश्न आपसे ये है राजेश जी कि कितने लोग इसको जानते हैं? एक ही मुद्दा है मैक्सिमाइजेशन की तरफ, यू नो बेटर हाउ यू प्रपोज टू मैक्सिमाइज। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि हाउ मेनी पीपल नो दिस मॉडल? मेरे पास इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक डेटा या फिर नंबर नहीं है, बट मैं आपको दूं? ये क्वेश्चन आप दूसरी तरह से पूछ सकते हैं। जी मैं पूछती हूँ, कितने लोगों को पता था ये? Only one. Now this is what we need to do. Maximizing happens through sharing, documenting. Another word is I clear. Yes, sir. No, you said no, you found that there is a duplication. Okay. Yes. So if you can suggest that who are the people working actually? No, when you know that there is duplication, you know that there are some other people who are also working in a similar area. Okay. So if we have a synergy, okay, like if you just name that there are 5 people working in this area, if you meet all unite 5 people and then find a strategy, okay, so one can avoid the duplication and other things. So something to be actually work on that line. Then you said exactly correct thing that there is a duplication. So we want to avoid the duplication and actually having a synergy among those group working in a similar area, so that you can share the experience, you can learning of each other can also be maximized and other things. So that is what actually we should go for. So you want the names, sir? Names No, and you that decide. You decide. not at this moment, but
Yeah, definitely I'll share, We- but I cannot share at this point of So, time or on this the platform. idea is that no, because there are different areas, okay, and 10 people working on education, 10 people working on health and other things. So if we have a synergy, and then those 10 people can actually have a common, agenda. And Absolutely sir. So let us take an example. अभी रिसेंटली हम जब हमें बोला गया कि और एक प्रोग्राम हमें करना है मैनेजमेंट से कि हमें एक हेल्थ पे मेडिकल वैन पे एक प्रोग्राम करना है और मेरे लिए भी चैलेंज था बिकॉज अर्लियर इट वाज सपोज टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट इन दहेज एरिया देन मैंने आई सेड गिव मी 1 month सर एंड कम बैक टू यू कि एग्जैक्टली दहेज में करना है कि कहीं पे और करना है बिलीव मी सर दहेज में जहाँ पे हम करने वाले ऑलरेडी वहाँ पे 8 मेडिकल वन अभी चल रहे हैं सेम मॉडल कोई फर्क नहीं नॉट अ सिंगल पर्सन फर्क तो अभी हमने ये सोचा है कि व्हाई नॉट देन लेट अस गो टू नेत्रंग और वेरेवर देयर इज अ नीड yeah, that is what actually. So, Thank you, Mr. Rajesh. We'll come back to you with many more questions at the end from the audience. And then you also need to finally conclude as to how are you further going to maximize. So we take a committed step forward. Thank you very once again. Coming on to Mr. Badihar from DCM, please sir. Thank you. So I will not start from the stage, but from Rajesh. Actually, when I came to Jagadia location, the problem was kind of same because it is again an industrial area. So I found कि yes बहुत सारे duplications हैं. So first task was to identify those duplications and then plan your interventions accordingly. So fortunately we have conducted a baseline or need assessment last year, and we found that yes we are also working almost on the ratio. If you see 80% was on infrastructure related work and 20% on sustainability. So that was a means you can see a trigger for us कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी पे आएंगे बिकॉज एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उसके बाद भी उसको मेंटेन करना दैट अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने वाटर कूलर दे दिया किसी स्कूल में तो 2 साल बाद जब वो खराब होगा तो फिर आपके पास आएगी डिमांड की आपने वो खराब हो गया अब इसको आप रिपेयर करवा दो. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विच वी ऑल आर फेसिंग. मतलब यहाँ पे जो CSR से बैठे हैं या डेवलपमेंट सेक्टर में हैं सो एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी. सो लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें सस्टेनेबिलिटी प्लान आपने ऐड किया कि नहीं किया. सेम थिंग कि आपने जब वाटर हार्वेस्टिंग के काम हम सब लोग करते हैं पॉन्ड डीपनिंग करते हैं चेक डैम्स करते हैं बट चेक डैम्स बनाया 3 साल बाद फिर से वो थोड़ा सा डैमेज हुआ देन आपके पास फिर से कम्युनिटी आ गई. सो based on my previous experience, we have introduced sustainability part you can see in these activities. कि अगर आपने water cooler लगाया तो उस पे अगर वो community water cooler है तो क्या आपने उस पे water ATM वाला मॉडल लिया है या water ATM वाला मॉडल है तो क्या उस पे properly पंचायत उसको मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही. there are models available जहाँ पे उसको आप self sustain कर सकते हो भले वो 20 पैसा पर लीटर है बट अगर आप ले रहे हो तो कम से कम उसका लॉन्ग रन में आपके पास कम से कम उसको मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट होगी. सिमिलरली वाटर यूजर ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है. जब आप वाटर हार्वेस्टिंग चेक डैम्स की बात करते हो तो उसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आपने लिया या वाटर यूजर कमेटी बनाई है जो कि अल्टीमेटली उस पानी को यूज करने वाले हैं फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. सो ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस पहले तो हमने किए हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में जिनको हम बंद नहीं कर सकते थे. दूसरा स्टेप आया कि हमने कुछ प्रोग्राम्स जब हमने रिविजिट किया हमारी स्ट्रेटेजी को CSR स्ट्रेटेजी को तो हमने कुछ प्रोग्राम्स को ड्रॉप किया. लिटरली लाइक एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है सारी इंडस्ट्रीज का सो हम उसमें से बाहर आए. लेकिन उसमें साथ में ये भी ध्यान रखा मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल जो स्कूल एजुकेशन है स्कूल एजुकेशन में देन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है टॉयलेट्स हैं और उन पे काफी सारा फोकस था. स्मार्ट क्लास अगेन सबने देखे रखी है स्कूल में. आई हैव विजिटेड द प्लेस. मतलब मैं पहले जामनगर में था जहाँ पे वी वेयर द प्लेयर तो हम लोग जाते थे हम ही लोग काम करते थे. यहाँ पे मैंने देखा कि एक स्कूल में कम से कम 6 से 7 कंपनियों का ब्रांडिंग लगा हुआ है. सो उसमें हमारा भी था. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी दूसरी का हमारा भी था. सो ये एक चैलेंज था कि अपने इंटरवेंशन को कैसे अलग किया जाए दूसरों से. सो देन जब हमने हमारी स्ट्रेटजी को रिविजिट किया तो हमने पाया कि नहीं ऐसा नहीं कि एजुकेशन पूरा ही बंद कर देना चाहिए. नीड कहाँ है. सो नीड इज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. आंगनवाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन कैसा काम कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी पे आपने बिल्डिंग रिनोवेट कर दी
फिर आपने उनको कुछ दे दिया लाइक फूड सप्लीमेंट्स दे दिया, लेकिन क्या आंगनवाड़ी में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया है? क्या आंगनवाड़ी के साथ रह के आपने वनरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया? आपने देखा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वहाँ पे या नहीं है? आपने देखा कि न्यूट्रिशन का क्या लेवल है? मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग जब हम जाते हैं फील्ड पे तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग, जब गवर्नमेंट का डाटा उठा के देखोगे तो माल नरिशमेंट एक भी नहीं है उस आंगनवाड़ी में, एक भी बच्चा माल नरिश नहीं है। बट रियलिटी कुछ और है। जब आप खुद जाके बीएमआई करते हो तब आपको पता चलता है कि वहाँ पे मदर मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो गवर्नमेंट का डाटा है, वैसे भी गुजरात एज अ स्टेट वी आर वेरी पुअर इन सोशल इंडिकेटर्स। आपको पता होगा वी आर गुड एट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, हम बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, हमारी वेलबींग बाकी चीज़ों में अच्छी है, बट जब आप सोशल इंडिकेटर्स में जाते हो, एजुकेशन पे जाते हो, हेल्थ पे जाते हो, सो वी आर पुअर, वी आर लेकिंग एंड वी आर टॉप इन फ्रॉम बॉटम। सो वो स्टेट का भी प्रायोरिटी है अकॉर्डिंगली। जब आप उसका रीज़न बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ मिस रिपोर्टिंग है। आई एम टॉकिंग ऑन अ फोरम बट स्टिल देयर आर गैप्स इन द रिपोर्टिंग जब आप इन सारे डाटाज की बात करते हो। वी आर प्लानिंग सिमिलरली, एक हम लोग एम्बुलेंस प्लान कर रहे थे, मुझे आया कि एम्बुलेंस देना, क्योंकि हमारा तो ये ईसी मैंडेट भी होता है ना, तो उसमें कुछ मैंडेट्स आते हैं गवर्नमेंट से कि आपको ये दे देना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है एम्बुलेंस देना है। तो मैंने देखा, जब मैनेजमेंट को प्रपोज किया कि हाँ ये ईसी मैंडेट इसके हिसाब से हमको एक एम्बुलेंस देनी है, बट उसका होगा क्या? तो वो जाके खड़ी रहेगी कहीं पे। देन वी डिसाइडेड, मैंने जैसे बोला कि हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उसमें, सो वी डिसाइडेड कि अगर एम्बुलेंस देना है तो खड़ी रहेगी, एम्बुलेंस चलाना है तो ऑलरेडी जीआईडीसी जीआईए चला रहा है एक एम्बुलेंस हमारे जीआईडीसी वाले विलेजेस में। देन व्हाट नेक्स्ट? सो वी विजिटेड टू सीडीएचओ, वी अंडरस्टैंड द नीड, टीएचओ से मिले हम, तालुका हेल्थ ऑफिसर से, एंड एक ये चीज़ पता चली कि अभी एज पर मैंडेट 4 आपको एएनसी करानी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो एएनसी जो है वो मेडिकल ऑफिसर अगर करे तो ज़्यादा अच्छा है। और एक 20% लोग ही ऐसे हैं कम्युनिटी में जो प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट गायनिकोलॉजिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं या विजिट करते हैं। हमारे भी अगर हम झगड़िया की बात करें तो जो 18 से 20 विलेजेस जीआईडीसी में आते हैं उन पे ही कंपनियों का फोकस है। झगड़िया में 123 गांव हैं तो बाकी के 100 गांव का क्या? सो देन वी प्लान कि हम हमारे पूरे 123 विलेजेस के लिए, नॉट वी विल नॉट लिमिट टू अवर जियोग्राफी, बट वी आर प्लानिंग कि हम 123 विलेजेस के लिए ये मॉडल लॉन्च करें। वी हैव डिस्कस्ड एंड एग्रीड, इट इज एग्रीड, नाउ इट इज ऑन एमओयू स्टेज। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च एन एमओयू, जिसमें ऐसा नहीं कि कोई भी सर्दी खांसी बुखार वाला है और उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, उसमें प्रॉपर एएनसी चेकअप्स होंगे विथ एमबीबीएस डॉक्टर फीमेल, वी विल हैव ऑल द लैब टेस्टिंग फैसिलिटी इन दैट मैन, एंड दैट डाटा विल रिफ्लेक्ट इन गवर्नमेंट्स पोर्टल ऑल्सो। जो मतलब वो एग्रीमेंट हम सीडीएचओ के साथ हमने किया है कि वो गवर्नमेंट की एएनसी को भी मतलब हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बट गवर्नमेंट का जो अल्टीमेटली डाटा है वो भी इंप्रूव होगा एएनसी वगैरह का। सो देयर आर एरियाज जहाँ पे आपको अंदर तक जाके काम करना है। आप इम्पैक्ट मैक्सिमाइजेशन की बात करो तो मुझे ये लगता है कि देयर आर फोरम्स, एक तो कि पहले हम हमारे लेवल पे क्या एफर्ट कर सकते हैं, एंड वी आर फर्म बिलीवर एज अ no issues. So as a DCM Shriram Limited, we are firm believer कि हम सब चीज़ों के expert नहीं हैं, so we should take NGOs on board and we are taking. So we are working all the NGOs who are having expertise on that particular thematic areas जहाँ पे हमको need है या हम काम करते हैं. So say for example we are working with Seva Rural, there is a institute called VGTK, विवेकानंद ग्रामीण तकनीकी केंद्र, सस्टेनेबिलिटी की बात आप कर रहे थे. So we are working on skill development, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बट देन हमने को क्रिएट किया उस एरिया की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए. वी हैव को क्रिएटेड विद VGTK कि व्हाट इज द नीड, एंड वी फाउंड दैट DCS ऑपरेशन इज अ एरिया जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में DCS ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए अगर कोई बंदा ट्रेंड होता है तो उसको ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सकता है कंपनीज में. वी हैव कमिटमेंट लेटर फ्रॉम 7 कंपनीज नाउ जो कह रहे हैं कि आप ट्रेन करो, वी विल एब्जॉर्ब एंड गुड अमाउंट ऑफ सैलरी लाइक 15,000 इज अ स्टार्टिंग सैलरी. सो ट्राइबल्स के बच्चे जो केवल एक ये कोर्स 1 साल का करके सीधे 15,000 से शुरू होता है, तो दैट विल सस्टेन, मतलब वो एक बार उनको इनकम आने लगे देन हेल्थ एजुकेशन अपने आप टेक केयर हो जाता है. सो
we have started that kind of program. Last year we have supported with the equipments, and now in this year we are supporting 15 students in terms of their education fee, their lodging and boarding at VGTK. And it's not only technical training, but we are building the, you can say, softer aspect also, because tribals आते हैं, उनका dressing sense है, उनका communication skills है, job readiness है. We are working on those softer aspects also. इसलिए हम उनको वहाँ पे रखते हैं full time. It is not allowed to go home and back. They are staying there and they are getting only 2 weeks leave in a year. 1 week on during Diwali and another during Holi. So because उस campus में रहते हैं तो उनके overall behavior में, उनके attitude में changes आते हैं. So जैसा मैंने कहा कि VGTK के साथ हमने partnership की. चेतना, you must have heard about चेतना. तो for this खुशहाली सेहत program which we are implementing in Anganwadis, we have partnered with Chetna for that. We are also working on animal husbandry. अब एक challenge जो हम सबको भी आता है जो CSR professional कि we are also employees ना, we are not a decision maker, so we have to present in front of management. Management को और जो लोग you can say जो sustainable background से नहीं है, उनको ये लगता है कि CSR में भी output ऐसे ही आना चाहिए जैसे raw material डाल के दूसरी तरफ से आपको finished product मिलता है. So एक patience जो है ना, वो patience नहीं है. जहाँ पे patience, हमको भी time लगा, but we are now able to convince कि अगर हम animal husbandry में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट जो है ना वो 3 साल बाद आने वाले हैं. वो अभी नहीं आएंगे. जब एक बाछड़ी आएगी वो फिर माँ बनेगी और उसके जब रिजल्ट आएंगे देन इट विल देयर विल बी एन इम्पैक्ट. तो 3 साल का पीरियड आपको चाहिए, तब जाके वो एक फार्मर की इनकम पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा. सो ये सब चीज़ें हमको भी कन्विंस करनी पड़ती हैं. वी आर ट्राइंग कि हम मतलब वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम कन्विंस कर भी पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में. दैट्स वाई in this particular year we have just reverse ratio of spend. We are spending more than 85% on sustainable programs and only 15% on infrastructure development. वो भी ऐसे infrastructure development है जो last year से कुछ carry forward होके आए थे और अभी भी काम चल रहा है. So these are some of my experience and findings. And हाँ, impact maximization में हमने एक program का मैं example लेके आपको समझाता हूँ कि we have partnered with district administration. So here lots of companies are supporting My Livable Bharuch concept, and we have also visited to contribute on that program. But then we found कि contribution is one thing, but we should also implement the program on ground. Then we have finalized the concept of Kishori Utkarsh Pahal. So maybe adolescent पे आप काम करती हैं मैम, तो that is a program on adolescent girl only, and that is a district wide program. For this year we are focusing on Jhagadia block, but subsequently it will be expanded in other talukas of Bharuch, and the program is on totally leadership development of Kishoris. So because आप देखते हैं सरपंच पति, हम सब लोग फेस कर रहे हैं सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट. एज पर मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट 33% आरक्षण है, सरपंच महिला बनती है लेकिन काम सारा सरपंच पति करते हैं. सो कहाँ से काम शुरू किया जाए? सो काम शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी enthusiastic. You all are aware that Tushar Sumera is a dynamic collector. So he have recommended, and even we have co-created that program with district administration only, कि why you don't work on Kishoris, and going forward इसके long term में जो है हमको बहुत अच्छे result दिखने वाले हैं. So we have developed a module. UNICEF is partner in that program. They are developing modules for us, and MS University is also on board, who are going to assess the program. And program के बारे में थोड़ा सा brief करूँगा कि there are 6 modules we have identified, like health, menstrual hygiene, गवर्नमेंट स्कीम्स जो गर्ल्स के लिए चल रही हैं, उनके जो राइट्स हैं कि मतलब अर्ली मैरिज है तो उसके बारे में उनको पता है कि नहीं पता है, या और भी रोल्स और राइट्स क्या हैं उनको जो गवर्नमेंट से मिलते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. और उन 6 मॉड्यूल्स पे उनका रिगरस ट्रेनिंग होगा. इट इज़ अ 5-week ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 hours पर मॉड्यूल, एंड देन देयर विल बी एन असेसमेंट. एंड असेसमेंट के बाद हर गांव से एक ग्राम जागृत किशोरी आइडेंटिफाई होगी. वो ग्राम जागृत किशोरी जो है वो उस विलेज में पर्टिकुलरली ग्राम सभा में, विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटीज में रिप्रेजेंट करेगी एज अ इनवाइटी. एंड जब वो तालुका लेवल पे आएगी तो उसका देन अगेन देयर विल बी अ लाइव ट्रेनिंग कि अगर वो FIR कैसे फाइल करना है, आपके गांव का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, हाउ यू कैन रेज योर इश्यूज और इश्यूज रिलेटेड टू किशोरीज और वुमेन इन फ्रंट ऑफ ग्राम सभा और अदर बॉडीज. तो ब्लॉक लेवल पे उसका इंटेंसिव ट्रेनिंग एंड इन पर्सन विजिट
एंड देन नेक्स्ट लेवल पे जो है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट जागृत आदर्श किशोरी आइडेंटिफाई करने तक का ये प्रोग्राम है। एंड देन इट विल गो रिवर्स। अगर आपने अगर देखा होगा, मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, पर सब पार्टी के संगठन होते हैं जिसमें एक जिलाध्यक्ष होता है, जिलाध्यक्ष जो है उसके नीचे ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं, और वो लोग वापस जाके अपनी टीम के साथ, कमेटीज के साथ काम करते हैं। तो दैट इज द मॉडल, दैट काइंड ऑफ मॉडल वी हैव फाइनलाइज्ड एंड इट इज इन इम्प्लीमेंटेशन नाउ। वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कि इसका मतलब लॉन्च होने के लिए, बट बैकग्राउंड वर्क इज रेडी एंड वी आर वर्किंग पैरेलली। सो दीज आर थिंग्स जहाँ पे आपको एनजीओज की एक्सपर्टाइज को यूज करना, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। सेम टाइम पे गवर्नमेंट का जो फोकस है, एंड गवर्नमेंट का जो यू कैन से उनका टीम है, बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा, वी कांट रिप्लेस द गवर्नमेंट एक्चुअली, सो टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमको दोनों को यूटिलाइज करके, कोलाबरेट करके, और नेशनल प्रायोरिटीज को लेकर अगर हम काम करेंगे, तो आई एम श्योर दैट वी विल मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Parihar. Very well said. What I would like to just, we can go to the questions at the end because we have a lot of other panelists as well. But what is remarkable is your networking with many institutions, including the government, your initiative to re-strategize, because it's always the complacency that supersedes re-strategizing and revisiting. So you're not complacent. That's very remarkable. And you pointed out issues like social indicators and not financial indicators. Just like SRF, you also do not limit yourself to geographical, the locational spread. You want to just redistribute your funds. And what was most remarkable is that you are constantly in search of niche areas of doing something. So once again, thank you so much, and we wait for the questions from the audience later. Thank you so much. Moving on to Madam Carol from UPL. Thank you. It's already afternoon. Good evening. So good afternoon, everyone. Yet again, I believe between Rajesh and Dipendra, there is already a great context that has been set. In the light of the topic that we're discussing right now, if we talk about maximizing collective contribution, UPL has been a company that has been working when it comes to CSR even before the CSR Act was implemented and was made mandatory. It's been doing a lot of work since then. And ever since, our ethos has always been at looking at activities or programs या जो भी हम कर रहे हैं वो एक end to end solution को ध्यान में रखते हुए हम करें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मतलब ऐसे कर दिया और मतलब छोड़ दिया, it does not really meet a certain kind of a target or a certain kind of an impact. So just to give you a couple of examples, to begin with, synergy is something which UPL has always believed in, and it has always worked. So one of the projects that we are doing with Gujarat Green Revolution company is we work intensively with this company, wherein farmers across Gujarat, we are not limiting it only to factory locations, but farmers across Gujarat get a subsidy. In terms of micro irrigation system, I believe everybody is aware about the kind of costs and the input costs that farmers need to face when it comes to the kind of production that they kind of do. So if we take, for example, 1 acre land and plantation in that land, if I need to lay out drip irrigation, for example, if it costs about 1 lakh, given the subsidy, about 70% is something which is dealt with by GGRC itself. UPL then further contributes in terms of supporting the subsidy ahead. So usme lagbhag, given whether it's an SC/ST farmer or an economically backward farmer, there are multiple areas and multiple segments, and it's all charted down. So with that, we are able to kind of ensure that they get yet another further 20% of subsidy. So actually, if you go to see a farmer ends up paying maybe about 2,000 rupees or 3,000 rupees, it's something which is very beneficial for farmers in and around the region. So this is one of the projects that we are doing. What I'm trying to say here is we are not limiting this to a geographical area. We're doing it across locations. Second, I'm talking about a synergy with the government schemes and programs right here. So how do we maximize? Because at the end of the day, as we've been talking about duplication,
because if there is 100 rupee, I am also investing that 100 rupee, and yet many other companies are also investing that 100 rupees. But to what? So how can we all come together and ensure that there is a certain part being done and there is a certain impact and there is a value for that contribution being made? So that's one of the aspects. Second, UPL also does a lot of projects on its own. Like I'll give you yet another example. What we do is we have this concept of social forestry, and as part of social forestry, we work either with the panchayat or with a certain trust at the village level. We kind of get in a kind of a partnership with them, wherein we have kind of horticulture plantation that we do. So for example, in Fulwadi, we have about 10 acres of plantation that we have done of mangoes, just to let you all know. And we developed this plot over a period of 3 years. So overall, the association is very clear. We operate on a basis of ownership that needs to come from the community, ownership that needs to come from the trust. हम चलो हम करके चले जाएंगे, उसके बाद में क्या? तो ये जो प्लॉट है हम लोगों का लगभग 2016 से 2017 से है, तो 10 एकड़ का प्लॉट हम लोग ने फुलवाड़ी में डेवलप किया है और अभी भी वो प्लॉट है. एंड एज एंड व्हेन जब उन लोगों को कुछ भी अगर सपोर्ट होता है तो वी काइंड ऑफ help them in that process. So this is a social forestry model. Currently there are 5,000 trees in this particular plot, और वो आज भी हैं. All of you are welcome and invited to come and visit it. And this is only possible because of जो लोकल वहाँ पे पंचायत मेंबर्स हैं या जो लोकल वहाँ पे कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ में एक हम लोगों का एक रैपो डेवलप किया गया है, एक एसोसिएशन बिल्ड किया गया है. क्योंकि कई बार क्या होता है, I'm not going to name locations or areas. हम प्लांटेशन करके चले जाते हैं लेकिन ए वो सर्वाइव नहीं करता, बी कम्युनिटी इसको शायद मतलब कई बार काट भी देती है और बहुत सारे चीज़ें होती हैं. So there is this ownership, a holistic kind of discussion, a holistic kind of taking together people in this development process. तो एक ये दूसरा example है जहाँ मैं बता रही हूँ और ये कहना चाह रही हूँ that we are working in partnership and we do give a lot of emphasis for local governance and their role in whatever we do, and that kind of ownership there. Thirdly, yes, we have initiated a couple of infrastructure projects very recently, because काफ़ी बार ऐसा आ रहा था सुनने में और बोलने में करने में कि भाई थोड़ा हमको यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल की ज़रूरत है. और इश्यूज़ काफ़ी सोशल भी रहे हैं, वेर इन दे काइंड ऑफ कम एंड टेल अस के मैडम आजू बाजू के गाँव के जो लोग होते हैं वो लोग कम्युनिटी मतलब स्कूल में शाम में आके दे ड्रिंक एंड दे काइंड ऑफ डोंट रियली कीप द प्रेमाइसेस प्रॉपर्ली. तो पॉसिबल है कि क्या हम कुछ कंस्ट्रक्शन का टाइप का कुछ एक्टिविटीज़ कर ले, हमारा रूफ बहुत लीक हो रहा है, तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ भी हमने की हैं. बट टेकिंग इट अ बिट फर्दर हियर ऑन, कहीं लगा कि सिर्फ इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, थोड़ा सॉफ्ट पे भी हमें फोकस करना है. तो हम एक स्कूल को एक होलिस्टिक तरीके से उसे हम देख रहे हैं. ओवर एंड अबाउट लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम इको क्लब्स के साथ में भी हम काफ़ी सारा एनवायरनमेंट रिलेटेड हम लोग उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं और काम करते हैं. पर फिर कहीं लगा कि क्या स्कोलास्टिक लेवल पे भी क्या हम उनके साथ में काम कर सकते हैं. व्हेन आई से स्कोलास्टिक आई एम टॉकिंग अबाउट कोर सब्जेक्ट्स. So we are in this process of setting up science labs. और ये जो हम कर रहे हैं, obviously सब कुछ तो UPL खुद से नहीं कर सकती है. So we are going to be partnering with an NGO. Again, I'm talking about synergy. Again, I'm talking about looking at expertise that has already been established. तो इसको ध्यान में रहते हुए हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं जहाँ पे possible है कि इनका जो एजुकेशन लेवल है, क्योंकि अगर आप आसपास के जो गांव में अगर आप जाके आप मिलते हो तो वो लोग स्कूल में आना एक चीज़ होता है लेकिन उतना उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल है नहीं. तो शायद उनके सब्जेक्ट्स में इतने शायद मार्क्स ना डेवलप हो पाए, बट वी वुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सेट ऑफ स्किल्स, मतलब जैसे क्यूरियोसिटी हो गया, अवेयरनेस हो गया, तो किस तरीके से हम उनके साथ में बढ़ सकते हैं. तो दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी आर डूइंग. बट जैसे हर प्रोजेक्ट का स्केल, हर प्रोजेक्ट का पर्पस, हर प्रोजेक्ट का रीच अलग अलग रहता है. और फॉर सम रीज़न इस पूरे बेल्ट में, मतलब मुझे भी फ़िलहाल 1 साल ही हुआ है यहाँ पे, ये एम्बुलेंस इज़ समथिंग, इट्स लाइक हॉट पोटैटो और हॉट क्या बोले हम, आई डोंट नो, एवरीबडी इज़ इन लव विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एम्बुलेंसेज एंड रनिंग एम्बुलेंसेज. तो वहाँ से हमले भी एक तरीके का डिस्कशन हुआ था हमारा भी कि हेल्थ पे हम थोड़ा बहुत
काम करे, एम्बुलेंस सेटअप करे. और जब when we went out into, you know, we usually do a typical process wherein जब भी हम कोई काम करते हैं पहले एक गांव में जाके इंटरेक्शन होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगलाइजेशन प्रोसेस करते हैं देखने के लिए भाई बाकी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ठीक है, वो कर रही है या कोई और कम्युनिटी वाले क्या कर रहे हैं या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है क्या कोई सेटअप. तो वो प्रोसेस करने के बाद में ये पता चला कि ऑलरेडी वहाँ पे 4-5 एम्बुलेंसेस चल ही रही हैं. तो वो क्यों करना है, एक इस तरीके का डिस्कशन हमारा एक कमिटी है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आवर वेदर इट इज़ HR, whether it is IR, and whether it is CR. So we try and see it is representative in nature. So through that process, we try and ensure कि हमारा एक triangulation हो, and that's when we have our decisions. And then we said कि ठीक है ये नहीं करना है, maybe we can do something else. So that's when we decided to have iCamps with Seva Rural was one of our partner. And क्योंकि जनरली क्या होता है हम हेल्थ कैंप्स कर देते हैं लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट निकल के आता है, जो इशू निकल के आता है, उस पर कोई कभी एक्शन लेते नहीं, बस हम दवाइयाँ दे देते हैं एंड देन वी लीव. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट नेसेसरी, ऑल ऑफ अस कैन हैव आवर ओन अप्रोच विच इज़ ओके, विच इज़ गुड. एंड जिस तरीके का हमारा जोग्राफी है, गिवन झगड़िया हो गया या दहेज हो गया, जो भी हम कर रहे हैं इट इज़ रिक्वायर्ड. आई कांट से कि ये मत करो या वो मत करो, बट गिवन यूपीएल वी डिड से कि हम ऐसा कुछ करें जहाँ पे जो उसके इश्यूज निकल के आ रहे हैं उसका कोई एक एड्रेस हो. सो वी डिड फील दैट आई कैम्प्स वुड बी एन अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, बिकॉज जो कैटरैक्ट सर्जरीज होने थे या जो ग्लूकोमा के जो केसेस निकल के आए थे, दे वर ऑल रिफर्ड टू सेवा रूरल, एंड दे वर अबाउट 1000 people that we kind of reached out to that exercise. So this is just to give you a brief view, but otherwise UPL is doing a lot of work. This in a nutshell, this tells you कि हम लोग अलग अलग स्केल पे अलग अलग लेवल पे हम क्या कर रहे हैं. एंड एट दिस पॉइंट आई वुड ऑल्सो वांट टू शेयर कि रिसेंटली लगभग नवंबर के आसपास में दिल्ली में एक CSR समिट हुआ था, जहाँ पे UPL was, there was this report which was released by CSR Outlook, wherein UPL ranked 4th when it comes to doing and going beyond compliance related activities. So that's something really good, you know, on, I would say obviously on our part. जैसे अगर हम बोले कि 2% का यूजुअली रहता है स्पेंड, बट ऑन ईयर आवर एवरेज हैज़ बीन एनीवेयर बिटवीन 5% ऑफ स्पेंड दैट हैज़, यू नो, काइंड ऑफ बीन देयर. वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एक्सटेंसिवली. तो जैसे झगड़िया की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे 33 SHGs हैं जिनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं. फिलहाल नॉन फार्म बेस्ड पे हम लोग का उनके साथ में काम चल रहा है. फार्म बेस्ड पे वी हैवंट येट डन थिंग्स दैट मच, बट वी आर डूइंग इट एट दैट लेवल ऑफ इंडक्शन, ट्रेनिंग, एक्सपोजर. बस उसके आगे उसको किस तरीके से लेके जाए, वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ कंसिडरिंग थिंग्स राइट नाउ. बट व्हेन वी लुक एट अदर लोकेशंस, जैसे हम वापी देख लें या वहाँ देख लें, वहाँ पे हम लोग का एक कैशू प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे पर पीस पे वो लोग को cost मिलता है. It's properly set up. Again, there is a Nagli processing unit in near Dang. Obviously, Nagli Dang में बनती है तो processing unit वहीं लगी हुई है. Cashew वहाँ पे बनता है तो processing unit भी वहीं लगा हुआ है. यहाँ पे क्यों नहीं है? It's very obvious given the geography and the kind of setup that we are. Given that we were also recently awarded in Vietnam for our work in women empowerment. So I thought I would want to end this speech with saying that yes, synergies is one thing, and triangulation between industries, between NGOs is yet in the way of ensuring that we do not duplicate work. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, madam. What was impressive was that it's not that we, like Mr. Padia said, we can never replace government. We have to work with the government. And you have a unique example of where you synergize with a lot of government schemes to penetrate into the marketplace, the community, sorry. What was more important again was the ownership that you developed within the communities to participate and partner with you. And the kind of triangulation that you talked of is also very interesting. So we wait for questions from the audience subsequently. And now we have heard the industry speak about what initiatives they do and what networking they do with the NGOs and the local communities and the local institutions as well as the government. Now let us hear from Mrs. Urvi Shah from GCI of how you expect
to maximize whatever you have been doing in the community development on a sustainable basis. Thank you, Urvibin. JCI पहले तो मैं बोलती हूँ कि 5 एरिया में वर्क करता है, वो है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कम्युनिटी, इंटरनेशनलिज्म। कम्युनिटी में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लाइक ब्लड डोनेट कैंप, पष्टी टू पगरखा, मेडिकल कैंप सब लोग करते हैं, सब NGO करती है, लेकिन हम एक अलग करते हैं, वो है कैटल कैंप। वो पशुओं के लिए होता है। वो जैन सोशल ग्रुप तो करती ही है ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये हम भी करते हैं, वो हमारा बेंचमार्क प्रोजेक्ट है। और ट्रेनिंग में हम देखते हैं तो हम हाउ टू फेस इंटरव्यू, एम्पावरिंग यूथ, 10th 12th के बच्चों के लिए काउंसलिंग के ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। मैडम को तो पता ही है, हम यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और कम्युनिटी में हम UNSDG गोल्ड उस पर हम वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच उर्वीबेन। आगे जाके हम प्रश्नों का उत्तर देंगे कि आप जो कर रहे हैं उसको और प्रगतिशील कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सुनेंगे। ओवर टू Mr. Dhruv Raja, President Rotary Club of Bharuch, Narmada Nagari. You can look at maximizing rather than detailing of what is actually happening. We are today. This is working. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Again, back to our main topic about the collective efforts. Actually, the other side of the panel is are the great donors, and we are the great receivers. See, we are the custodians of that fund. At the end of the day, we use the CSR and our skills of using them, and that is that thin line called trust, and that on that trust we survive. So, not any big data, but Rotary has a Rotary Foundation, and it has received a ranking of 4-star from Charity Navigator. This is an independent navigator of all charities of United States, and this 4-star is one of the highest ranking. It indicates that we are adhering to the best practices. This I am saying because all the HRs present here, CSRs, we are looking for. Strong financial health, that's what our Rotary International has. Commitment to accountability and transparency, efficiency of 90% of fund spending for the cause, and only 1% of charity NGOs received such ratings. So this rating is responsible, which reflects that we are responsible, sustainable, and good. So having said that, why Rotary needs to partner with collective partner and have collective efforts? The best example was pandemic, when Rotary itself would not do so much of things than getting everything in line. All the NGOs came forward and we did so many things there. Disaster management, if we have floods and all those things, in not just one community can do this. We need everybody's effort. If joint effort, collective effort can only survive such kind of pandemics and disasters. In case of war, say in Ukraine, we had this war, and there were Rotary clubs in Ukraine, and certain Rotractors help students move out of the country. So this was some remarkable joint effort. Currently, the biggest topic is climate change, and that is where we look forward to join hands with so many NGOs. And efficient